السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، ایک ضروری اعلان آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھو، آج ہر جگہ دھوکہ ہو رہا، لوگ جھوٹ زیادہ بول رہے، لوگ آج دھوکہ دے رہے، لیکن معلوم نہیں ہوتا دشمن کون ہے اپنا کون ہے پہچاننے میں بہت مشکل ہو رہی ہمارے کو۔ صحیح ہے نا؟ ایک تو ہم بیماری سے بچنا چاہ رہے اور دوسرا پیسے بچانا چاہ رہے، لیکن دو بھی گوا لے رہے، نہ صحت مل رہی نہ پیسہ بچ رہا۔ لیکن آپ 100 جگہ جا کے مشورے کر کے میرے پاس آتے ہیں، کیا کرنا 100 لوگ 100 قسم کے مشورے دیتے آپ، لیکن ساتھ کون بھی نہیں دیتا، یعنی سوائے اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا۔ مشورے 100 لوگ دیتے، لیکن میں امپورٹنٹ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، میرے ویڈیوز لوگ ایڈٹ کر کے نمبرز لگا کے گروپس بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑتے بھی جا رہے۔ جینیون کون سا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ کچھ فالو کرو اور میری موجودگی میں ہی آ کے دوائی لے کر جاؤ، آن لائن کے اوپر ڈیپینڈ نکو ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ میں کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرتا ہوں، اسی لیے میں موجود ہوتا ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھو کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہر جگہ دھوکہ ہو رہا، جھوٹ موٹ بول کو ویڈیوز لگا کے ڈال کے نمبرز اپنے جو ہے اسکرین پہ ڈال کے ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے بول کے کانٹیکٹ کر کے جھوٹے دوائیاں بھیجا کے آپ کو۔ اسی لیے میں اللہ کا فضل کرم ہے کہ جب سے میں آپ کا جو ہے خدمت کرنا شروع کرا تقریباً 6 سال سے، آج اللہ کے فضل سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے میرے پاس۔ الحمدللہ عمرے کو گیا تو الحمدللہ پاکستان کے فالوورز، سعودی کے فالوورز، دبئی کے فالوورز، شیخاں، اللہ ہر جگہ عزت، اور الحمدللہ لوگ پہچان رہے، چپ نہیں فالو کرتے، نسخوں کو عمل کر کے فائدہ اٹھا لیتے۔ اسی لیے میری زبان سے میں نسخہ بتاتا ہوں اور اسی ویڈیو میں میری زبان سے میں میرے نمبرز بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا۔ تو اسی نمبرز پہ آپ فون کر کے مجھ سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بنگلور میں بیٹھ رہا ہوں 3 دن، 9 دن حیدرآباد میں بیٹھ رہا ہوں، 5 دن گلبرگہ میں بیٹھ رہا ہوں۔ دنیا کے کونے کونے سے مجھے انویٹیشنز آتے ہیں، سعودی کو آؤ، دبئی کو آؤ، قطر کو آؤ، دوحہ کو آؤ، لیکن میں کام میں نہیں جا رہا ہوں۔ یہاں غریب اور بیمار زیادہ ہیں، اسی لیے میں یہیں پہ بیٹھے ہوا ہوں آپ کی خدمت کر لیتے ہوئے۔ کیوں بولے تو لاکھوں کا علاج رہتا آپ کا، اوپر سے سکسیس نہیں ہوتا۔ اب وہ الحمدللہ چھوٹے موٹے نسخوں سے اور نارمل اس سے آپ کو بڑے مسئلے سے اللہ کیسا نکالتے وہ بتاتے ہوئے لائیو میں آپ کو ریزلٹس کے ساتھ نسخے بتاتا ہوں اور بولتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پاس آؤ مت، آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے اچھے ہو جاؤ، بس اللہ سے دعا مانگو، شفا اللہ دینے والے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس شفا نہیں ہے، صرف دوا دے سکتا ڈاکٹر بیماری کو پکڑ کے، لیکن شفا صرف اللہ ہی دینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اس وجہ سے میرے نمبرز پہ کانٹیکٹ کر لے کہ انشاءاللہ مجھ سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ آکے ملاقات بولے تو مجھے دیکھ لو، میرے ساتھ میرے BUMS ڈاکٹرز ہیں، 3 سے 4 ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے۔ پورا الحمدللہ ٹرین اپ کر دیا، سارے چیزیں بتا دیا۔ میں راز کو لے کو دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں، اسی لیے سارے چیزیں بتا دیا۔ آج وہ نسخے ڈاکٹر بول رہے وہ بھی آدھے بھی دے، کچے پکے پورا کاپی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن 1-4 آئٹم چھوڑ دیتے بولنے کا۔ کہاں سے سیکھے بولے گا تو ہم یہاں سے سیکھے، ہمیں وہاں سے سیکھے، ہے نہیں؟ اسی لیے اللہ بھلا دیتے کچھ چیزیں۔ میں آپ کو 2 منٹ 3 منٹ کا ریل نہیں بناتا ہوں، پورا 1 گھنٹہ بمڑی مارتا ہوں، پورا دیکھو بول کے، اور پورا ڈیٹیل میں جڑ تک جاتا ہوں، جڑ تک جا کے نکالتا ہوں الحمدللہ۔ بیماری کو کم نہیں کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے ختم کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوا ہوں، اسی لیے جڑ تک جاتا ہوں۔ پورے وجوہات کیا کیا ہیں بیماری آنے کے، پورا ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بتاتا ہوں۔ آپ جب یہاں پہ آتے تو میرا کام آپ کی بیماری کو پہچاننا الحمدللہ،
सिर्फ मैं बीमारी को पहचानता हूँ, बाहर से पूरा स्कैन होके आते हैं, डॉक्टरों से मिलके आपकी तकलीफ हम बता के पूरा A to Z, अब जब सामने आते तो अल्लाह फजल से 1 सेकंड में मैं पहचान लेता हूँ आपको क्या क्या तकलीफ है और कौन से दवा दे और आपका इलाज नुस्खे आपको क्या क्या सिखाए, ये पूरा 1-2 सेकंड में मुझे समझ में आ जाता, फिर मैं उसे राइट मार्क डाल देता हूँ इंशाल्लाह, फिर आप जो है आराम से लेके जा सकते विदाउट एनी डाउट इंशाल्लाह, और अमल भी करना जाके अच्छे से इंशाल्लाह। अभी मेरे पास माशाल्लाह से मेरे भाई जो है क्रिएटिनिन कितना 6 पॉइंट क्रिएटिनिन, डॉक्टर डायलिसिस बोला 4 से ज्यादा बढ़ते ही डायलिसिस बोलते थे, एक बार डायलिसिस करा दिए तो वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस, हफ्ते में 2 बार, एक सिटिंग को 15,000 20,000, अब वो डायलिसिस करते वक्त मौत आती का ना वैसी होती तकलीफ। 6 पॉइंट डायलिसिस करने बोले उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डायलिसिस नहीं करे, अल्लाह के फजल से उनको मेरा एड्रेस मिला, मुझे आके मिले भी नहीं उन्होंने सीधा मेरे ऑफिस को गए, मैं जो चीज़ा जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ वो नुस्खे शिफा के बाटला लेको पिए, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में 6 क्रेटिनिन जाको 2 पे आ गया माशाल्लाह, और डॉक्टर खुश शौक, डायलिसिस भी नहीं क्या भी नहीं, पूरा नॉर्मल, किडनी अच्छी, 15 दिन में शिफा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आओ मैं इधर सामने, आओ इधर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कहाँ से हैं माँ? तुमकुर से। क्या तकलीफ थी आपको? क्रिएटिनिन ज्यादा हुआ था। हाँ। कितना हुआ था? 6 पॉइंट हुआ था। 6 पॉइंट। हाँ। क्या बोले डॉक्टर? डायलिसिस करना, बाद में बायोप्सी करना करके बोले, फौरन अबिच करना करके बोले, हमें ये वो तुम्हारे पास निकल का आगे। हाँ, बाद में मेरा एड्रेस कौन दिया आपको? मोबाइल में हमें देख ले को आ गए माशाल्लाह। हाँ, ये स्टार्टिंग का रिपोर्ट इधर है। हाँ, ये स्टार्टिंग का रिपोर्ट था। हाँ, 6 पॉइंट का कहाँ है? और इधर 2 दिन के बाद। हाँ, 2 दिन के बाद इधर हुआ था, इधर किडनी फेशियल इसके नहीं। 6 पॉइंट हुआ था। क्या देखो डिटेल में रिपोर्ट आएंगे, साथ बता रहा हूँ मैं आपको। क्रिएटिनिन 6 पॉइंट क्रिएटिनिन, नाम सलीम। हाँ, नाम सलीम, डेट 3 अप्रैल 6 है क्रिएटिनिन। उसके बाद 2 दिन बाद और टेस्ट करे रिसेंट कल का है। नाम सलीम, जरा साइलेंट रहो, नाम सलीम है नहीं। उसके बाद डेट अप्रैल 19, 3 तारीख को करे थे 19, तकरीबन 15 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इम्प्रूव हो गया। ये पूरा इम्प्रूव हो गया और क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 2.7 पे आ गया माशाल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर डायलिसिस को बोला, बायोप्सी करो बोला। कितने पैसे पूछ रहा था? पैसे हमें नहीं पूछे, एडमिट हो जाओ जिसका, हमें निकल को आ गए तुम्हारे पास आ गए, फौरन आ गए। गुलबर्गा के चले गए। 1.5 लाख होती और बोला था। 1.5 लाख होती बोला था। आप क्या होना इनको? मामू 1.5 लाख रुपए होते बोला था। हाँ, किसका मुंडा मुश्ना कहते। हाँ, बाद में हमें आ गए, निकल गए, वो तुम्हारे पास आ गए। हाँ, आए। कितने दिन इस्तेमाल करे? मेरे पास आए बोले तो क्या मेरे ऑफिस गए थे? नहीं, गुलबर्गा गुलबर्गा में। हाँ, नईट डॉक्टर बोलते गुलबर्गा का गए 600 किलोमीटर तुमको से। हाँ, 600 किलोमीटर गुलबर्गा को क्या करे? को मेडिसिन लिया तुम्हारा। हाँ, 15 दिन में जाको कल रिपोर्ट करने से नॉर्मल आ गया। 2.7 पे आ गया। 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट था। इमरजेंसी डायलिसिस बोले, बायोप्सी करो बोले, 1.5 लाख रुपए। हाँ, अभी कैसी है तबीयत? अब अल्हम्दुलिल्लाह पर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का रहम। इधर थोड़ा सुस्त है। आने लो इंशाल्लाह, पूरा बता देता हूँ इंशाल्लाह। देखो माँ, 6 पॉइंट क्रिएटिनिन, 1.5 लाख रुपए पूछा, बायोप्सी करना क्या, डायलिसिस करना क्या, अब भी एडमिट हो जाओ गया। और वहाँ एडमिट हो गए तो खबर उनकी खोदते रहना था अब तक। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ आंखों में, अपने जिस्म को गारत कर ले रहे सो। अल्लाह शिफा देना तो कैसा भी देते, अल्लाह की जात पे यकीन रखो बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। देख लो यहाँ पूरे रिपोर्ट में पूरा डिटेल रखे हुआ हूं सामने। ऐसे 1-2 नहीं, कल का भी देखो आप। हर दिन मेरे पास तकरीबन लोग आके किडनी अच्छे हो गए सो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको 1-2 नहीं, हजारों की वीडियोस में बताया
अम्मा अल्लाह शिफा रखे, कुदरती चीजों में अपनाओ। नहीं अभी लोगों की सुन 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 को पूरा अपनी सेहत को गारत कर ले रहे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनको खाली क्रेटिनिश नहीं, बाकी के पूरे भी चीजें नॉर्मल आ गए, उन्हें पूरा बता रहे। किडनी फेल का मसला कौन सा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है। अल्लाह वो चीजों में शिफा रखे, वो इल्म आपके साथ बांट रहा हूं। अल्लाह से मांगो शिफा बोल रहा हूं आप लोगों को, समझ रही। और एक मेरी माँ आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी जो है आके दुआएं दे रहे, रमजान में सब दुआ करे करते मेरे को माशाल्लाह से। उनको शियाटिका का पेन परसों एक मरीज मिले थे मेरे को मिलते रहते रस्तों में चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मतलब इतना ऐसा मेरे को खुशी होती है उन लोगों, डॉक्टर साहब आपके नुस्खे देख के हम इतना अच्छा अमल करे, इतना फायदा हुआ माशाल्लाह, ऐसा ऐसा कहते। लास्ट में डॉक्टर साहब क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कहते। बोलते बाद में कई को इतना सब भी इतने सालों से अमल कर रहे, मेरा नाम नहीं जानते। बोले तो डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, लेकिन आपके वीडियोस देख के मैं आलिम बन गया। मुझे पता है कौन कौन सी चीजों में क्या क्या शिफा रखे अल्लाह ताला, मैं सीख गया। मेरे को पढ़ने नहीं आता, माफी चाहता हूँ मैं, मेरे को आपका नाम भी याद नहीं है, लेकिन आपसे बहुत फायदा उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, हजारों के पैसे हॉस्पिटलों में डाल दिया, लाखों के पैसे हॉस्पिटलों में डाल दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो 10-15 रुपए का इलाज बताए उससे मेरे को शिफा हो गया। बोलते जान खुश होता ना, पीछे हट सकता हूँ क्या, बोलो ऐसी खिदमत अल्लाह ले रहे मेरे से। अब मेरी माँ को शिद्दत की तकलीफ थी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने घर पे बैठ के गोलियां बना ली, जो मैं शियाटिका के गोलियां बनाने का बताया आप लोगों को। अब लोगों को डाउट रहे तो फोन करके नुस्खे फ्री में मालूम कर लो, आप 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है आपको। आप गलतियां करें तो अल्लाह यहां तक लेकर आते सब, समझ में आ रहा। क्या गलती करे वो आप जानते और अल्लाह जानते। आज सुबह में हैदराबाद से अकेले आए कहते, रास्ते में एक्सीडेंट हो गए, पूरे बाहर पड़ गए। मैं बोले मैं खुद आ रहा हूं ना, मैं हैदराबाद, वहां इतना रोते ना, मैं खुद आ रहा हूं ना। बोले तो नहीं, अर्जेंट आपसे मुलाकात करना था। आपको गाड़ी पूरी चपट, पूरे गाड़ी से बाहर, इतने तकलीफों से आप लोग मेरे तक आते, हजारों किलोमीटर का फासला करके, बोल के मैं खुद जो है बेंगलुरु, गुलबर्गा, हैदराबाद में बैठ के आ रहा हूँ, सामने बैठ के इलाज कर रहा हूँ। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ सिवाय अल्लाह के, और मेरी ड्यूटी जो मुझे अल्लाह ताला दिया मुझे करना जरूरी है, बैठ के कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद है। समझ रही? आइए अस्सलाम वालेकुम माँ। और क्या पैदा हो सामने? हाँ बेटे, मुझे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नंदी दुर्गा रोड, जय महल। तो मुझे है ना, मेरे भाई मर गए, एकदम मैं टेंशन ले ली, बॉडी पूरा बहुत ये हो गई थी। उसके बाद मुझे मैट्रेस पर बिठाए, उसमें डीप गड़ा था, उसमें बैठ गई ना, स्लीप डिस्क को शटिका का पेन हो गया। उसके बाद मेरे बेटे मुझे लज्जा के तरह के डॉक्टर के पास बताए, काम भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं रमजान में रोजे रहती हुई रोती ऐसा पड़ी रहती वही बेड पे। फिर वो फिर जगह भी बुला ले गया वो नलमंगल को, तो वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं यही आपका यूट्यूब चैनल देखी, अरे मेरा बच्चा इतनी अच्छी दवाई बोल रही, तो मैं जाको ये काटोमैन को पकड़ी, फिर उनको डबल ये देखो, मैं एक पंसारी के पास गई, तो उसके पास अब जो बोले थे वो ले ली, फिर लाके उसका पाउडर बनी, फिर उसके गोलियां बनी, तो उसमें शिफा हो गया मुझे। 4 दिन में शिफा हो गया। 4 दिन में शियाटिका का? हाँ। फिर तड़पती थी, अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे वो जरिया बनाए, लेकिन तुम्हारी मदद से, अल्लाह की हुक्म से 25वें रोजे को मैं ईद के दिन में अच्छी होगी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे देख के खुश होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा। आजकल शियाटिका के दर्द से लोग सालों से इलाज कराते, सक्सेस नहीं होते, ऑपरेशन भी कराते, क्या क्या किच कराते, सक्सेस नहीं होते। शिद्दत का दर्द ऐसा शॉर्ट मार ऐसा होता है, नहीं शिद्दत का दर्द करंट मार ऐसा होता, कमर से लेके एड़ी तक। मैं आपको बताया सो हूँ नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह, गोलियां बनाने का भी बताया सो हूँ, पाउडर बनाने का बताया सो हूँ। फोन कर लो,
इंशाल्लाह मेरे नंबर्स पे, उन्हें आप लोगों को गाइड करते, घर पे बैठ के बना लेके शिफा हो जाओ इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900666495 7795414139 8197041411, ये 3 नंबर से भी फोन करो इंशाल्लाह। बिजी आया और एक बार करो, बिस्मिल्लाह बोलो, करो कनेक्ट होता है नहीं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के कनेक्ट करो, इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाता। नहीं तो आप कनेक्ट करते गए तो मुझे लाखों के फोन आते। हमें कोशिश कर रहे पूरे हमारी तरफ से, मैं भी स्टाफ को बढ़ाते जा रहा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मुझे और ज़रूरत है जिनके अंदर जज्बा है कौम की खिदमत करने का। इंशाल्लाह मुझे कैंप में मिलते ना, आके मिलो, रिज्यूम लेकर आओ इंशाल्लाह। चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ ये काम में इंशाल्लाह। और एक मेरे भाई माशाल्लाह से, कहाँ से माँ? मदनपल्ली से है माशाल्लाह से। बीवी को सिस्ट का प्रॉब्लम था, यानी अब वो सिस्ट फैब्रॉइड और सिस्ट, गड्ढा बच्चेदानी में, ठीक है। तो औलाद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन आप जितना रखेंगे उतना जल्दी रिजल्ट पाएंगे, यकीन मानो आप। मैं जो भी जिनको भी बच्चेदानी में गड्ढा है, सिस्ट है, इनको मिनिमम 3 महीने का इलाज करता हूँ। 3 महीने का इलाज करता हूँ, 3 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं औलाद के लिए। लेकिन मेरे भाई को माशाअल्लाह 1 ही महीने में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का रिजल्ट, 6-7 साल बाद। कितने के डॉक्टरों को बताए, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन ये वो IVF क्या क्या चीज बताए, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है, उनका यकीन उतना मजबूत था अल्हम्दुलिल्लाह, उतना अच्छा उन्होंने फॉलो करे। अब ये महीना आया उन्होंने, डॉक्टर साहब गुड न्यूज लेकर आया बोल के अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं। जो मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तो मैं लेता हूँ इंशाल्लाह। शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, ठीक है। किसी को जल्दी मिलती, किसी को अल्लाह थोड़ी देर सब्र से इंतजार करो कहते, यानी वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशियीन, यानी तो नमाज और सब्र का सहारा लो। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो अल्लाह से सच्चे दिल से मोहब्बत करते, है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइए बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हाँ, कहाँ से है माँ? मदनपल्ली आंध्र प्रदेश से। हाँ, क्या मसला क्या था? ये लेट मैरिज की वजह से सिस्टम भी फाइब्रॉइड है बोल को बोले डॉक्टर हमको। वो एक से एक डॉक्टर को दिखा डाले मैं आंध्रा में। पूरे जने भी सिस्टम है, रिपोर्ट देखे तो IVF कराना, दूसरा चांसेस नहीं है बोले। चांसेस नहीं है? चांसेस नहीं है। अब चांस अभी एक जना तो टेस्ट ट्यूब भी बोल डाले तिरुपति में डॉक्टर, ये उन्हें 70 इयर्स का डॉक्टर, उन्हें माहिर बोल के उसका हाथ अच्छा बोल के गए तो टेस्ट ट्यूब भी चांस, अब दूसरा चांस नहीं है कर को बोल डाले। फिर तुम्हारे वीडियोस देखता था मैं फेसबुक में, यूट्यूब में, सीधा आपको तुम्हारे से कंसल्ट होने के बाद मैं दवा दिए थे 3 महीने का, वो 1 महीने का यूज करे। और थोड़ा गर्मी ज्यादा होती है बोल को हमारी बीवी छोड़ डाले मेरी, वो दवा कम कर डाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव हो गई। 1 महीने में कंसीव हो गया? हाँ। अब मैं तुम्हारे से दुआ लेंगे, अब फर्दर क्या करना, कैसे रहना, अम्मा बच्चा कैसा सलामत से रहना, फर्दर डिलीवरी के बाद भी सही सलामत कैसा रहना, अल्हम्दुलिल्लाह लेने आया था। कहते 17 साल का डॉक्टर, क्या 70 साल का डॉक्टर, ठीक है। 70-80 साल मुझे 30 साल भाई, लेकिन 100 साल का तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब की उम्र क्या है, शादी हुई क्या, उनकी चांस है क्या पूछते, कहते फोन कर को बीमारी आएंगे पूछे, बोले तो चांस पूछते। हाँ तो मुश्किल है, 2 बच्चों का बाप हूँ बोल दो क्या में ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो माशाल्लाह मेरे भाई को मैं जरा सिस्टर एंड फैब्रिक की दवा उनके मिजाज के हिसाब से देता हूँ, अल्लाह के फजल से 1 महीने में रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कंसीव हो गए। जो भी लोग कंसीव के लिए आते उनके लिए इंशाअल्लाह हम यहाँ पे पूरा गाइड करते, आपको रेमेडी सब जो भी है, लेकिन 2 चीजों के ऊपर ध्यान दो, एक परहेज करो, दूसरा रेस्ट करो, ठीक है ना। ट्रैवलिंग नहीं करना और गरम आइटम्स कुछ भी नहीं खाना, गोश्त, अंडा, मच्छी, ठीक है, ये आइटम्स नहीं खाना, गुड़, तिल, ऐसा कुछ भी गरम चीजें नहीं खाना। दूध खाना, छाछ खाना, दही गरम होता, छाछ खाना, दूध खाना, नारंगी, रागी, ऐसे चीजें ही खाने बोलो, ठीक है। और अर्जुन की छाल, अगर उनको कुछ भी ऐसा मसला है हार्ट का, किसी को बार बार मिसकैरेजेस हो जा रहे,
तो ना अर्जुन की छाल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या भी नहीं डालना, 2 या 3 इंच डाल के पका के पी सकते हैं। आपको अर्जुन की छाल नको, खाली आप ये चीज इस्तेमाल करो बस, ठंडी का आइटम, और ट्रैवलिंग नहीं करना, वजन नहीं उठाना, ठीक है ना। बस इतना करेक्ट से 5 से 6 महीने फॉलो कर लो, इंशाल्लाह बच्चा सही सलामत रहता है इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर किसी को रूहानी मसले हैं तो नो बेर के पत्ते का भी इस्तेमाल करो। बेर के पत्ते रात को पानी में डालना, सुबह में उसको पका लेना, पका लेने के बाद वो आप खाने के दवाइयों में, खाने में डाल के ले सकते। और औरत और मर्द तेल का एप्लीकेशन में हर वीडियो में बताया, माँ आपको बार बार बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप रिवर्स मेरे वीडियोस देख लो, हर मर्ज के ऊपर में बड़ा सा बड़ा लेक्चर दिया सो। यकीन मानो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स आते, ये चैलेंजिंग केस कैसा सॉल्व करे, को आपको ऐसा हंक्या फाड़ को देखते मेरे को घूर के ऐसा निगल का जैसा, मैं उनको बोलता हूँ अम्मा ये अल्लाह की ताकत है, मैं कौन होता हूँ सॉल्व करने वाला, समझ रही, ये अल्लाह की ताकत है। जिनका लिवर अच्छा हो रहा, जिनके किडनी अच्छे हो रहे, जिनको औलाद हो रही, ये मेरी हैसियत नहीं है। बस मैं इतना बता रहा हूँ, अल्लाह के तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह से दुआ करो, शिर्क से तौबा करो, तागे तावीजा नारल नींबू कड़े ये सारे चीजों से तौबा करो, नमाज को कायम करो, फर्ज है नमाज, ज़कात और सदका दियो, हलाल रोटी कमाओ, हराम रोटी से बचो, धोखा देखो, झूठ बोल को, नाहक किसी का भी माल खाने से बचो, दिमाग को ठंडा रखो, रात को सुकून से नींद करो, दम करो न को रिश्तेदारों को, है नहीं, सब कुछ छोड़ को, इन्हें कैसा है, इन्हें क्या है इसके पास, इसे 2 जोर हुआ, इसके इतने बच्चे, इडली गोरी है, इडली काली है, इन्हें कई को गोरी है, उन्हें कई को काली है, इन्हें इसके साथ गई, उन्हें इसके साथ गया, सब भी टेंशन लो न को, और बीमारियां बढ़ जाते, और रिश्ते तोड़ने के काम करो न को, जहन्नम में चले जाते। और सब रिश्तों में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता अल्लाह ताला के साथ मजबूत रखो, आपका बाल भी बाकी होने नहीं देते अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। वो एक रिश्ता छोड़ के दुनिया के रिश्ते पकड़ लेते भी आपका फायदा नहीं होता, नुकसान में रहते, घाटे में रहते। वो मोहब्बत को पहचानो जो आपके हर गुनाह माफ करने के लिए तैयार है, आपको हर वो एक चीज अता करा है नहीं, इतना अच्छा दिमाग दिया सोचने के लिए, सोचे तो आपको रास्ते नजर आते, अल्लाह खोलते, नियतों के हिसाब से अल्लाह रास्ते खोलते आपको। आप बीमारी में आगे के बाद किसकी सुनूं किसकी छोड़ूं समझ में नहीं आता, बहुत बड़े टेंशनों में आते आप लोग, उठ को खड़ने भी नहीं होता आपको, बाहर मैं खुद आके देखता हूं आप लोगों को। उस वक्त आप ठंडे दिमाग से काम करो, अल्लाह के पास रुजू हो जाओ, हराम की रोटी से बचो, हलाल रोटी की तलब करो, कर लिए गुनाह तो तौबा करो, किसका हक ले लिए उनको वापस कर दियो, वापस नहीं तो जाके बोलो एटलीस्ट, नहीं तो बहुत तकलीफ में आ जाते। यकीन मानो तौबा का भी मौका नहीं मिलता वैसों को, जो किसी का हक खा जाते ना, उनको तौबा का भी मौका नहीं देते अल्लाह, मर जाते हैं बहुत जल्दी, और मरने के बाद उनको बहुत मुश्किल हो जाती, फिर हिसाब किताब में उन्हें जवाब नहीं दे सकते। फिर समझ में आ रहा, क्या देंगे वहां, क्या देंगे रिटर्न, पूरी दौलत तो छोड़ को जाना, ले जाते कौन तो भी पूरा छोड़ को जाना, वहां जवाब क्या देंगे, मुंह क्या बताएंगे आप, 1 सेकंड का भी मौका नहीं देते मौत के फरिश्ते। समझ में आ रहा, दिमाग को ठंडा रखो, रात में सुकून से नींद करो, ठीक है, रात भर जागो, लोगों को मोबाइल पकड़ ले को, क्या नहीं तो भी चलता मोबाइल रहना, बाथरूम में भी होना है नहीं, बिस्तर पे भी होना, दस्तर पे भी होना, हर जगह मोबाइल नहीं तो नहीं जीते। छोटे छोटे बच्चों को, हमारे जमाने में हमें खिलौना खेलते थे झुंझुने लेको, अब मोबाइल दे तो मुंह बंद होते बच्चों के भी, बच्चे औरतें बुढ़े बुढ़िया पूरों को मोबाइल होना, यानी ये मोबाइल देख देख को आपकी हंकियां और आपका दिमाग खराब हो जा रहा, और नींद आ रही नहीं आपको, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जा रहा। रात को सुकून से नींद करो, मोबाइल उठा के साइड में रखो, सर का मसाज करो, बिस्मिल्लाह बोल के दुआ पढ़ के सो जाओ इंशाअल्लाह, ठीक है ना। जो थोड़ा तो एटलीस्ट 0.1% तो भी जरा शरीयत को अपनाओ, पूरी तरीके से छोड़ डाले हम। बहुत कुर्बानियों से इस्लाम यहां तक पहुंचा, बहुत कुर्बानियां दिए, जाना दे दिए, मालान दे दिए, शहीद हो गए हमारे बड़े, एक से एक कुर्बानियां दिए दीन को यहां तक पहुंचाने के लिए। आज हम लोग खेल ले रहे, इसीलिए ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये मुसीबत
आपको मालूम कैसा है कंडीशन, अभी भी नहीं सुधरे, यकीन मानो नौकर से बदतर जिंदगी जीते, नौकर से बदतर जिंदगी बहुत करीब है, 1-2 महीने में मालूम हो जाता आप लोगों को क्या है हमारी औकात। टाइम है हमारे पास, आज भी एक हो सकते, आज भी एक हो सकते नहीं। अब भी इन्हें सुन्नी रे, इन्हें तोंडा रे, इन्हें शिया रे, इन्हें शिया में इन्हें जो है क्या बोलते सो, और एक बोलते ना क्या की शिया को, हाँ राबजांगा रे इन्हें खाली वो गाले को, लड़ने को, तोड़ने को बैठेंगे तो यकीन मान लो तोड़ लेते, बहुत तकलीफ में आ जाते। मैं बोल रहा हूँ डिवाइड होने को, पूरे एक हो जो प्यार मोहब्बत में एक बन गए तो एक ताकत बन जाते हम लोग इंशाअल्लाह। कैसे से हमारे मस्जिदें शहीद हो जा रही, इसके जिम्मेदार हम होते जी। काबिलियत दिए अल्लाह, देने के बाद भी हम लोग बैठे तो नहीं सब गंदे कमेंट कर ले वो घरा में। निकलो बाहर, कौम की खिदमत करो, एक दिल में जज्बे को पैदा करो, पूरे एक हो जाओ, मोहब्बत पैदा करो दिलों में, नफरतों को छोड़ो, पूरे मिलके एक बनेंगे तो इंशाअल्लाह। हुकूमत थी हमारी, आज तो मुश्किल है, एटलीस्ट खाली कॉम्प्रोमाइज में जी लेते करे। कब तक कॉम्प्रोमाइज कर ले बैठते? शेर की जिंदगी एक जीना करते, गीदड़ के 100 जिंदगी से सुन को ही ना। आज गीदड़ से बदतर जी रहे हम लोग, डर डर के कदम कदम पे, कहां कब क्या होता कि नहीं मालूम है नहीं। तो दिमाग को ठंडा रखो, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो, जो भी अल्लाह आपको देते आपकी हैसियत से देते, अल्लाह ने तो थोड़ा आजमा के देते लेकिन जरूर देते इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, मोहब्बत करो, दिमाग को ठंडा रखो, जिस्म को गर्म रखो, बॉडी को एक्शंस पे लो, काम वगैरह करो, चलो फिरो, एक्सरसाइज, योगा, जिम, हलो हदरो। फार्म के मुर्गियां जैसा बैठो नो को, नाटी मुर्गियां हो बाहर बल्ला के हो गई, हमें फार्म के मुर्गियां होंगे मुसलमान के पूरे, खास कर ना हिदायत मिल रही ना सेहत मिल रही, सही है ना हिदायत मिल रही ना सेहत मिल रही, काहेला हो गई हमें। एक बाप बेटे को बोलता कहते, बेटा तुझे क्या होना तो मिल जाता, तो खाली बटन दबाना, बटन दबाते ही खाना, बटन दबाते ही पानी, बटन दबाते ही नौकरा, तो खाली बटन दबा, तुझे क्या होना बैठे जगह मिलता। इन्हें बोलता कहते, अब्बा ये बटन कौन दबाना कहता कहते। ऐसे काहेला हो गए हम लोग, समझ रही। तो जिस्म को जरा एक्टिव करो इंशाल्लाह। छठवां, पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किसमें क्या पैदा रखा अल्लाह ताला ये जान लियो। अल्लाह बहुत शिफा रखे एक एक चीज में। किसी का पेट खराब है, मुल्ली का जूस पियो, आपको दर्द है जिस्म में, भेंडिया खाओ, थायराइड है, धनिया, खुत्तीमिर अपनी आदत बना लो, उसकी चटनी बना के खाओ, रात को धनिया पानी में भिगने डालो, सुबह उठ को पका के पियो। शुगर है, कलौंजी और मेथी 50-50 ग्राम लेके भुन के उसका पाउडर बना लो। इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, वो बैला है जो बोल रहे हैं आपको इसमें किडनी खराब होते, इससे ये होता, उससे वो होता, उन लोग कुछ भी नहीं मालूम। नीम हकीम है उन लोगों को तरीका नहीं मालूम जीने का, आपको डरा देते, मेथी खाए तो ऐसा होता वैसा होता, आपका खून गाढ़ा हो रहा, कोलेस्ट्रॉल है, खाली मेथी 1 चमचा रात को पानी में भिगने डालो, सुबह को उठ के वो पानी पियो। मेथी का पानी आपके खून को पतला करता, आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता, आपके जिस्म में जो गर्मी है उसे दूर करता, हाथ पैरों में झुमझुमाहट को दूर करता। एक एक चीज में 100 बीमारियों के लिए शिफा रखे अल्लाह ताला। इसका इल्म हमने कहीं को नहीं है। सो कब तक आखिर रोज लेके फिरते बोलो आप? एक बीमारी का इलाज करने जाको डॉक्टर 10 बीमारियां पैदा कर डालता। खाली डॉक्टर को ही मिलने हो, तसल्ली करने जाते हॉस्पिटल को, वो हॉस्पिटल को जाको 7 फेरे ले को खबर को चले जाते, खर्जा में डुबा को। गायक बात भी नो गालन देना, बख्तावर का पूरा डुबाक चलेगा। जिंदा रहे तो भी मुसीबत, मर को गया तो मुसीबत, नक्को बनो किसी के ऊपर मुसीबत। अल्लाह बहुत आसान करे शिफा, एक एक चीज में अल्लाह 100 बीमारियों के लिए शिफा रखे। थायराइड है तो क्या करना, धनिया, शुगर है तो क्या करना, कलौंजी और मेथी, बीपी है तो क्या करना, लहसुन, अदरक, पुदीना, पुदीना के 2 मुट्ठी पुदीनों में बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है। पुदीना 1-2 मुट्ठी पुदीना, 1 2 से 3 लहसुन के कलियां, 1 2 से 3 इंच अदरक ले लो, चटनी बना लो, खाओ इंशाल्लाह। पहले दिन से बीपी नॉर्मल, फिर धीरे धीरे गोलन छोड़ देते आप इंशाल्लाह। थायराइड है, धनिया ले लो,
धनिया लेको रात को पानी में भिगने डालो, सुबह को उठ कर उसका पानी पियो, फिर धनिया लेको खुत्तीमीर उसकी चटनी बना लो, वो चटनी खाओ, खाने के साथ शिफा है, आपके अंतड़ियों को पाक करने के काम करता हो और आपके थायराइड को नॉर्मल करता जड़ से। गोलियां फेंक देते आप इंशाअल्लाह। आप ये गोलियां खाते हैं 25 ग्राम से शुरू करता है उन्हें, कब तक खाओगे तो खबर को गए तक खोगता उन्हें। अब वो डोज रखता नहीं, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300 करता, लास्ट में आपको डरा डालता, फुल डरा डाल को अब बाहर इसने निकलना नहीं तो मौत का फरिश्ता ठहर रहा है। देखो बाहर कहता, मौत का फरिश्ता बाहर ठहर रहा, अब बाहर नहीं निकलना, बहुत खतरनाक कंडीशन कर रहा है, पेट क्यों काटता, आप भी सुनकर को काटो, मालूम नहीं हुआ बस करते। समझ में आ रहा, वजन बढ़ते ही जाता आपका दिन ब दिन, आपको समझ में नहीं आ रहा, गोलियां खा 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 खो। समझ रहे आप मेरी बात? तो थायराइड है तो धनिया, बीपी है तो अदरक, लहसुन, पुदीना, कोलेस्ट्रॉल है तो मेथी। मेथी के फायदे मालूम हो गए, अगर सुनने के रेट में मिला तो भी ले लेते कहते अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेथी के फायदे। कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। पेट खराब है, मूली को अपनी आदत बनाओ, सुबह ही 1 गिलास मूली का जूस पियो, कितने दिन पीना पूछो न को, खबर को गए तक पीना बोलता हूँ, फिर आदत बना लियो मूली का जूस। पेट खराब है आपको, पाइल्स है और मोशन सही नहीं हो रहा, खाली 2 पीपल के पत्ते हर जगह मिलते, फ्री में मिलते, 2 पीपल के पत्ते लाख एक बार कुछ तोड़ को रख लियो। 100 सवाल घरों को 2 डोज पीना क्या, 3 नहीं पी सकते, डोज पीना क्या, 1 नहीं पी सकते, पिए तो कितने दिन पीना, क्या टेम्पो पीना, नहीं पिए तो क्या होता, छोड़ को पी सकते। 100 सवाल पैदा करो को, खाली पीपल के पत्तों में अल्लाह शिफा रखे, वो आपके लिए गिजा है। सुबह में 2 पत्ते पीपल के 1 गिलास पानी में डाल के उसका ग्राइंडर बना के सुबह ही पी लो इंशाअल्लाह। 3-4 दिन में आपका पाइल्स खत्म हो जाता है इंशाअल्लाह। अपनी आदत बना लियो, हफ्ते में 2 बार 3 बार, लाइफ में बीमारी नहीं आती आपको इंशाअल्लाह। यूं रहते घटमुट है नहीं, ये तो बच्चे यूं देखे तो बस यूं कांपते रहते आज के अम्मा बाबा, बच्चे को डर को जी रहे, बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा यूं देखे को तो बस यूं बैठ जाते, आवाज नहीं पुकारा नहीं हो, खाली बोलते होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटे का दिल नहीं दुखना बोल को, बच्चा क्या बोला तभी सुन ले को यूं बैठते हैं। ये भी आपके लिए आजमाइश अल्लाह की तरफ से। मेरी बंदी मुझे डरती है या अपनी औलाद को डरती है? रिज़्क़ उन्हें देना बोल को समझिए कि मैं ही दे रहा हूँ, उन्हें तुझे नहीं दिया तो रिज़्क़ उसका रिज़्क़ मैं छीन लेता हूँ। उन्हें तुझे ला को नहीं पाल रहा, तेरा हक अदा नहीं कर रहा, उन्हें खुद तकलीफ में आता, तू कहीं को से डर को जीती, कहीं को डरते अपने बच्चों को। आप करे सो कम एहसान करे, उनको पाल पोस को, पैदा कर को, 9 महीने पेट में ढोको, 9 महीने पेट में धोको, वो दर्दा से काट ले को फाड़ ले का इन बार बड़ा कर को, बड़ा हो को जीना हराम करता होता अम्मा बाबा का, जीने नहीं देता। और ये बच्चे को डर डर को मर रही नो, अम्मा भी बाबा भी, किनको तो ताकत कम रहती ना, इन्हें जरा जिम कर को आता, गुस्से में एक मार मार देता, कांग घुस जाती मर डर। तरबियत के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, बच्चों को दीन की तालीम दियो, ऑटोमेटिकली उनकी दुनिया भी बन जाती इंशाअल्लाह। समझ रही मेरी बात? गोलियां के वास्ते मेरा बच्चा मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे घर से बाहर निकाल डाला बोल को आगो रोती मेरे पास माँ बाप, गोलियां के वास्ते में पूछी मेरे बच्चे को मेरे घर से बाहर कर डाले, नहीं करते। गर्म पानी पीने गई का तो गैस खत्म होता, माँ कर को बोल को मेरा बच्चा मुझे झिड़का डाला, ठंडा पानी पी रू कर को आको रोते मेरे पास आके रोते। मैं देखता हूँ डेली, आपकी सूरतान देख को पढ़ लेता हूँ, बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन किसे किसे कितना दम कर रही पूरा मालूम होता, आपके सूरतों में पूरा लिखे हुआ रहता। समझ में आ रहा? अब भी एक पेशेंट है कि हैंस बोलने का नको, यानी पूरा पढ़ लिया कितना दम कर रहे शोहर को बोल के, यानी पहले मोबाइल लाओ क्या देखते ही हल्लू छपाक दे रहे, परस में कहाँ के अंदर रखो ये लो, यानी 24 आवर्स मोबाइल में रहे। बोला मोबाइल होना बच्चा होना, बोला बच्चा होना मोबाइल रखो क्या? समझ में आ रहा? पहले छेदा बंद कर लिए तो इंशाल्लाह तब घड़ा भरता, अब छेदा रखले को पानी भरे तो घड़ा नहीं भरता, टाइम बर्बाद होता। समझ रही आप मेरी बात? बहुत ज्यादा बम्बड़ी मार डाल रहा हूँ,
ہے نہیں. لیکن میں کیا کروں, آپ لوگوں کے اندر ایک احساس کے نام کی بھی چیز آ گئی نا, آپ کی زندگی سنور جاتی. دیکھو انشاءاللہ خالی آپ نیت کرو, فیصلے اللہ کرتا ہے انشاءاللہ. آپ نیت کرو, فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا. دیکھ لو آپ انشاءاللہ آپ کے اندر احساس بھی آ گیا, جی ہو اللہ تعالیٰ ہے, میں یہ غلطی کرا, میں اسے سدھار لیتا ہوں انشاءاللہ. اسی ٹائم سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیتا ہے انشاءاللہ. آپ کی سوچ سے بھی آگے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کو ہدایت دینا نہیں دینا یہ بھی اللہ کو بہترین معلوم ہے. جانوروں سے سیکھنا آج ہمیں وفاداری, جانوروں سے سیکھنا. انسان جانوروں سے بدتر ہو گیا, حالانکہ اللہ فرما دیا اشرف المخلوقات, ساری مخلوق میں 16,000 سے زیادہ قسم کی مخلوق کو اللہ پیدا کرا, لیکن بولتا ہے کہ میں زیادہ پسند انسان کو کرتا ہوں. اور یہ انسان اللہ کو اتنا ناراض کرتا قدم قدم پہ. لیکن اللہ فرماتا انہیں ناراض کرتا, لیکن انہیں معافی مانگ لیا تو میں اسے معاف کر دیتا, انہیں توبہ کر لیا تو میں اسے معاف کر دیتا. خالی اللہ بہانے ڈھونڈتا میرا بندہ کب میرے طرف پلٹتا کی بولتا. لیکن ہمیں لوگ پلٹنے سے تیار نہیں, خبر کو جانے تیار نہیں, ہم لوگ سدھرنے تیار نہیں. آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, آپ کی تکلیفیں دیکھ کے پتھر ہو گیا دل میرا, دیکھ کے میرے کو پورا سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اس وجہ سے یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ بدلو اور صحیح راستے پہ آ جاؤ انشاءاللہ. پھر دیکھو اللہ کی اسی طرح شفا ہوتی. گھڑی 4th اسٹیج کینسر کے, کل دیکھو آپ کتنے سارے 4th اسٹیج کینسر کے جن کو 2 دن کا ٹائم دے کے بھیج دے رہے ڈاکٹرز, ریکور ہو کے آگے سے ٹھہر رہے الحمدللہ. ڈاکٹر 2 دن کا ٹائم دے دیتے ایسا, چلو آج نہیں تو کل مر جاتے. شکریہ بولو آپ, ڈاکٹر 2 دن میں مرتا بولے تھے, شکریہ بول رہا ہوں بھنچا پھاڑ کو, جزاک اللہ مجھے توبہ کرنے کا موقع مل گیا بول لینا آپ. کتوں کو موقع نہیں ملتا, 1 سیکنڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گٹک مر جاتا ہے یا نہیں. اچھا تھا نا رے آپ بولے تو کل نہیں رہتا انہیں. کبھی بھی موت تمہارے سر پہ ہے. اب آپ کو ڈاکٹر انٹیمیشن دے رہا 2 دن میں مرتا بولے گا, تو اس سے بڑا آپ کو اور کیا ہونا تحفہ ہے نہیں. مجھے موقع مل گیا بولا امیڈیٹلی جانا, سجدے میں سر رکھ دینا, 2 دن کے اندر مر گئے تو الحمدللہ. یہاں پہ اللہ واپس ہی زندگی دے رہے الحمدللہ. سمجھ رہی ہیں, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے انشاءاللہ. بس اللہ سے دعا کرو اور اپنی زندگی کے لیے آخرت کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ 1 سیکنڈ بھی ہم نہ اس دنیا کے حوالے ہونے نہ کو دے. اللہ یہ دنیا پوری جھوٹی ہے, یہ فانی ہونے والی ہے, بس اپنے حفظ و امان میں رکھ بول کے. اور ہمیشہ انشاءاللہ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم نہ صحیح راستہ بتا دے, گمراہی سے بچا دے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر 9900664995 7795 414139 8197 41411. 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی شور گمبز رنگ روڈ انشاءاللہ. 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد میں میں ایڈریس چینج کیا, جلپلی میں ہوں انشاءاللہ. فون کر کے معلومات کر لو. آنے سے پہلے میں ویڈیو اور ایک بار ڈالتا ہوں جس میں پورا ایڈریس بتاؤں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور 19, 20, 21 تاریخ کو بنگلور میں کمبی پور انچے پاڑیا فیضو لے آؤٹ انشاءاللہ. اور بنگلور میں میری ایک آفس ہے یہاں پہ, آپ وہاں پہ کبھی بھی جا کے انشاءاللہ بیٹھ کے اپنی پوری کیفیت سنا کے, وہاں شفا کے بوتلیں بھی رکھی ہوں آپ کے لیے, جو بھی میں دوائیں لکھتا ہوں وہ دوائیں بھی رکھی ہوں انشاءاللہ. بے فکری سے جا کے وہاں پہ سیکھ کے لوگوں کو بتاؤ, ان کو ٹھیک کرو انشاءاللہ. بہت اجر ملتا آپ کو اس کا, دنیا میں اللہ دے دیتے آپ کو اس کا بدلہ. ٹھیک ہے. ایڈریس منی ٹیریس بلڈنگ 1st فلور ابو بھارت بینک نیکسٹ ٹو HDFC بینک ڈبل روڈ نیئر شانتی نگر بس اسٹاپ انشاءاللہ. یہ میری آفس ہے, وہاں پہ جو ہے میرے ڈاکٹرز اور ان کے اسسٹنٹس رہتے, آپ بے فکری سے جا کے ملاقات کر سکتے. اور حیدرآباد میں بھی ملک پیٹ میں بھی آفس ہے انشاءاللہ. فون کر کے معلومات کر لو, وہاں جا کے بیٹھ کے آپ لوگ سیکھو یہ علم کو. ٹھیک ہے. اگر میں رہوں گا 3 دن تو آ کے بتا لے سکتے, اگر میں نہیں ہوں بولے تو آفس کو جا کے آپ میڈیسن ایمرجنسی رہتانا آپ کو, اب بھی سونا چلے جاؤ انشاءاللہ. انتظام کر دیا. اور 8 تاریخ کو رائچور میں, 9 تاریخ کو کرنول میں, 13 تاریخ کو نظام آباد میں. الیکشن ہونے کی وجہ سے 12 تاریخ کو نظام آباد میں انشاءاللہ کیمپ رکھا گیا ہے. وہاں پہ میرے بھائی ڈاکٹر اظہر انشاءاللہ دیکھتے, ڈاکٹر اظہر انشاءاللہ دیکھتے آپ کو. ان کے پاس ہی رہتے. دیکھو میرے دوائیں میں اور کسی کو بھی نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آج کل کے ڈاکٹروں کو AC ہونا, 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, چھات لگا دوں گا تو
ہے نہیں تو نہیں ہم نہ ویسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے جو ڈاکٹر قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے. اما ہو گیا جی 2 منٹ میں بمڑی ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. ہاں تو انشاءاللہ ویسے ڈاکٹروں کو میں الحمدللہ چنیا سے ہوں. میرے پاس اللہ کا فضل ہے کہ ڈاکٹر عالمہ بھی ہیں حافظہ بھی ہیں الحمدللہ. حافظ کے ساتھ ساتھ عالم جو ہے ڈاکٹری کر رہے سو ہے BUMS. ایسے جو ہے دیندار ڈاکٹرز اللہ کے فضل سے الحمدللہ میرے پاس ہیں. اللہ کی ایسے بھی نعمت ہے تو آپ لوگ جو ہے بے فکری سے انشاءاللہ میرے پاس آئیں گے نا انشاءاللہ. دیکھ لو یہ انسان کو ویڈیو میں دیکھ لیتے نا غور سے تو سامنے ایک دیکھے تو زندہ رہتا ہے انسان انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ دیکھیے ڈاکٹر مبشر الحمدللہ DUMS ڈاکٹر صاحب DUMS گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج سے حافظ ہیں اور حافظ کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے ڈاکٹری بھی کیے اور یہ علم سیکھنے کے لیے الحمدللہ تقریباً 3 مہینے سے دل لگا کے سیکھے اور جو ہے ایک تجربہ حاصل کرے. اور میرے بھائی ڈاکٹر اظہر ماشاءاللہ سے جو BUMS گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج بنگلور سے ہی فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ. انہوں بھی جو ہے آئے بہت اچھا دل لگا کے سیکھے ماشاءاللہ. کیونکہ یہ نہ ڈاکٹروں کو معلوم نہ حکیموں کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ راز کی چیزیں پورے میں بتا دیا. آلموسٹ میں آپ کو فیس بک یوٹیوب پہ بول دیا گھر پہ بیٹھ کے کر لو بول کے الحمدللہ ٹھیک ہے نا. تو میرے کچھ ڈاکٹرز کو میں پوری چیزیں بتا دیا کہ نیچرل چیزوں میں اللہ ایسی شفا رکھے تو ماشاءاللہ دل لگا کے پورا سیکھے ان لوگ اور قوم کی خدمت کے لیے ویریئرز بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیک ڈاکٹروں اور فیک ویڈیوز اور فیک گروپ سے بچو آپ لوگ ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. فوٹو لیں گے کیا بول رہے ہیں